हम्म।
गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ये हम लोग पिछले बार जो है उसका डू एंड डू नॉट वाला किए थे ना। हाँ सर। वो सेकेंडरी मार्केट का था। हम्म। उसके बाद का टॉपिक क्या है? प्रोडक्ट इन सेकेंडरी मार्केट है क्या? हाँ सर। हाँ, तो हेडिंग दे दो, प्रोडक्ट इन द सेकेंडरी मार्केट्स। प्रोडक्ट्स इन द सेकेंडरी मार्केट। तुम्हारा तुम अपना फोन अलग रखे हुए हो क्या? सर नहीं, मेरा तो है। मेरा मेरा वो, हाँ, मेरा वो बंद है ना व्हाट्सएप लैपटॉप पर। नहीं, तुम ऑलरेडी लिखे हुए हो, आई हैव ज्वाइंड। वो फोन नंबर दूसरा है। हाँ सर। नहीं उसी सर, पर यही तो वाला है। है। यही वाला है। मतलब वो मेरा है। अब मम्मी का फोन अलग है। हाँ। हाँ, तो हम उन्हीं पर बात करने लगे। तुम ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके थे। वो अभी ऑनलाइन है क्या? तो प्रोडक्ट इन द सेकेंडरी मार्केट में जो टॉपिक हम लोग को डिस्कस करना है, पहला टॉपिक क्या है? शेयर्स। शेयर्स इन द प्रोडक्ट्स इन द सेकेंडरी मार्केट्स। Our topic of discussion is products in secondary market, and we know that most important factor in secondary market is shares. We all know that shares are of different types. First of all, we know about the equity share. Then we will know about the right issues and right shares. Then we will study bonus shares. Then we study preference share. Then we get cumulative preference shares, and lastly, cumulative convertible preference shares. Just I am writing the name and then we will speak. First is equity share. Second is rights issue. Rights issue. Oblique right shares. Right shares. Third is bonus share. Bonus share. Fourth is preference share. Preference share. Fifth is cumulative preference share. Cumulative preference share. Sixth is cumulative convertible preference share. Cumulative convertible
convertible preference share. Preference shares. All will be in plural, shares. So when someone asks you that what are the types of share, you will say that there are 6 types of share. First is equity share. Second is right shares or right issues. Third is bonus shares. Fourth is preference shares. Fifth is cumulative preference share. Sixth is cumulative convertible preference share. These are the 6 shares. You tell me what types of shares are found in secondary market. They speak only in language. Yes, sir. Following are the main financial products or instruments dealt in the secondary market. Number one, shares, equity shares, then right issue or right shares, bonus shares, preference shares, cumulative preference shares, cumulative convertible preference shares. Okay, Sir, that's it. Tell tell me what you want to say. have you written something on the page? I cannot see it. No, I have just before discussion I have put down 6 names there. Oh, I'm not able to see that. Okay, it's fine. You are not saying. No, sir. Whiteboard is visible or not? No, sir. Huh? I mean, the whiteboard is visible, but there is nothing written on it. Nothing written. No, sir. Should I rejoin the meeting and then see? You enter, leave and Okay, sir. enter. Is it visible now? Is it visible? Om? Yes, sir. Now it is visible. Is it visible? Yes, sir. Oh, इस टर्म को लिखो ना ERBPCC.
ये साइड में लिख दो, यही याद करने का तरीका है। ERBP. E for equity share, R for right share, B for bonus share, P for preference share, C for cumulative preference share, and another C for cumulative convertible preference share. Now we will speak all these six. Yes, sir. Equity shares, right issue or right shares, bonus shares, preference shares, cumulative preference shares, or cumulative convertible preference shares. This term ERBPCC. E for equity share, R for right share. Right share को पहले हम लोग बोलेंगे, हम लोग को शेयर बोलना है, इशू दिए हुए है ना, तो राइट शेयर को यहाँ फर्स्ट लिखेंगे और तब इसको सेकंड कर देंगे। फर्स्ट राइट शेयर बोल, फर्स्ट राइट करने से हो जाएगा हम लोग का सब शेयर शेयर हो जाएगा। तो E फॉर इक्विटी शेयर, R फॉर राइट शेयर, B फॉर बोनस शेयर, P फॉर प्रेफरेंस शेयर, C फॉर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, अगेन C फॉर क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। फिर बोलो तो तुम। यस सर। सर उसमें बॉन्ड्स हैं। हाँ, उसके बाद तो बॉन्ड्स है सर, आपने सारा बोल दिया ना टाइप्स, उसके बाद बॉन्ड्स का टाइप है। क्या करे बॉन्ड के बारे में ना? हम्म। ना ना ठीक है, इसको तुम बोलो ना एक बार, फिर बोलो हाँ सर। सीक्वेंस में जैसा है। इक्विटी शेयर्स, राइट शेयर्स और राइट इशू, बोनस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स और क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, अब now defining equity share. An equity share commonly refers to an ordinary share, represents the form of fractional ownership in business venture. इसका मतलब हुआ कि इक्विटी शेयर जो है एक ऑर्डिनरी शेयर है, और इसमें ओनरशिप जो है फ्रैक्शनल है। किसी भी बिजनेस में ओनरशिप 100% है या उसका पार्ट है वो, तो फ्रैक्शनल ओनरशिप है इन ए बिजनेस वेंचर। कोई बिजनेस वेंचर हो रहा है, उसमें आप 100% नहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपका आपके तरह इक्विटी खरीदने वाला और भी लोग है। अडानी अंबानी किसी का निकलता है तो इक्विटी जब बिकता है तो कोई भी खरीदेगा। तो इसलिए इक्विटी शेयर क्या हो गया? इक्विटी शेयर हो गया एन इक्विटी शेयर commonly referred to as ordinary share, represents the form of fractional ownership in a business venture. क्लियर है? हाँ सर। अब आ जाइए राइट राइट शेयर। राइट शेयर ही बोलेंगे पहले, राइट इशू बाद में कर देंगे। तो राइट शेयर ताकि सब शेयर शेयर में रहे। राइट शेयर क्या है? द इशू ऑफ ए न्यू सिक्योरिटी टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स at a ratio of those already held at a price. For example, 2:3 rights issue at 125 rupees, rupee 125 would entitle a shareholder to receive 2 shares for every 3 shares held at a price of 125 per share. कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई न्यू सिक्योरिटीज आया है तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उसको प्रेफरेंस देगा और कहेगा कि आपको हम, चूंकि हमारा आप पहले से शेयर खरीदे हुए हैं, आप अप्लाई किया, कोई नया अप्लाई किया, तो जो पुराना शेयर खरीदे हुआ है तो न्यू सिक्योरिटीज एग्जिस्टिंग शेयर, तो वो उसका रेशियो कर देगा कि 2:3। 2:3 का मतलब हुआ कि 125 मान लीजिए है एग्जाम्पल, 125 वुड बी इंटाइटल ए शेयर होल्डर to receive 2 share for every 3 share held at a price of rupees 125 per share. 3 शेयर में उसको 2 शेयर जो है मिलेगा, प्रेफरेंस है। बोनस शेयर, बोनस शेयर का मतलब क्या हुआ
share issued by a company to the shareholder for shareholder free of cost based on the number of shares of the shareholder owns. अगर आपके पास पहले से 10,000 शेयर है तो मालिक खुश हो गया कि भाई तो हमारा अपना शेयर खरीद रहा है, तो बोनस शेयर जो है बिना कुछ लिए दिए भी आपको 150 शेयर आपके नाम से कर देगा। जनरली जो आदमी काम करता है, मान लीजिए IBM में कोई काम कर रहा है, तो IBM का शेयर वो खरीद सकता है, और वो खरीदे हुआ है। अब उसको जो बोनस शेयर के रूप में, चूंकि उसका एम्प्लॉय भी है और खरीदे हुआ है, तो बोनस शेयर उसको दे सकता है। और बोनस शेयर जो होता है फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जनरली हम देखते हैं बहुत सारा IBM का जो स्टाफ है वो कहता है हम लोग को बोनस शेयर मिला है। और हम लोग के यहाँ बिहार में या कहीं जो है, तो है ही नहीं फैक्ट्री, लेकिन जहाँ भी है तो बोनस में वो कैश चाहता है। कैश मिल जाए तो अभी दशहरे का समय है या दिवाली का समय है तो उसका खर्च करेंगे। और यहाँ जो है बोनस आपको शेयर दे दिया, वो शेयर आपका नाम से हो गया, जब चाहिए उसको भजा सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर का मतलब है कि ओनर ऑफ दीज काइंड शेयर आर इंटाइटल्ड टू a fixed dividend or dividend calculated at the fixed rate to be paid regularly before dividend can be paid in respect of equity share. They also enjoy priority over the equity shareholders in payment surplus. But in the event of liquidation, their claims rank below the claims of companies, creditors, bond holders, and debenture holders. प्रेफरेंस शेयर के बारे में कहता है कि इस तरह का शेयर उन्हीं लोगों को मिलता है जिनको कि फिक्स डिविडेंड है। फिक्स डिविडेंड है या डिविडेंड कैलकुलेटेड एट ए फिक्स रेट टू बी पेड रेगुलरली बिफोर डिविडेंड कैन बी पेड इन रेस्पेक्ट ऑफ इक्विटी शेयर। तो कोई आदमी कहता है कि हमको पर मंथ जो है आप हमारा जो डिविडेंड है वो फिक्स डिविडेंड आप दे दीजिए। तो डिविडेंड क्या होता है? एंटरप्रेन्योर जो है अपना दिए हुआ है, रिस्क टेकिंग करके इक्विटी खरीदे हुआ है, तो ठीक है इक्विटी है हमको, लेकिन हमको जो है आप प्रेफरेंस शेयर वाले हम हैं, और हमारा हमारा जो है डिविडेंड जो है आप रेगुलरली हमारे अकाउंट में भेजिए। तो मंथली अगर जाना है तो रिस्पेक्ट ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर वाला जो होता है उसका कोई रेगुलर नहीं जाता है, जब उसका जरूरत पड़ेगा लिखेगा कि हम बेच रहे हैं या कर रहे हैं तो। लेकिन प्रेफरेंस शेयर वाला क्या हो गया, जैसे कैसे कोई आदमी हर महीने चाहता है कि हमको रेगुलर इनकम हो, तो वो बहुत सारा शेयर वैसा खरीदेगा जिसमें रहेगा कि रेगुलरली आपको पेड किया जाएगा डिविडेंड। और इक्विटी वाले से पहले इसको डिविडेंड मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर वाला जो होता है जब डिविडेंड बंटने लगेगा तो पहला बटेगा किसको? प्रेफरेंस शेयर वाले को। लेकिन दे ऑल्सो एंजॉय प्रायोरिटी ओवर द इक्विटी शेयर होल्डर इन पेमेंट ऑफ सरप्लस। पेमेंट में वो प्रायोरिटी है, इक्विटी शेयर के ऊपर है। लेकिन इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन, माने अगर आप उसको बेचना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तब आपका क्लेम जो है रैंक बिफोर द क्लेम ऑफ द कंपनी क्रेडिटर, बॉन्ड होल्डर और डिवेंचर होल्डर। तब आपका क्लेम जो है वो कंपनी के क्रेडिटर या बॉन्ड होल्डर और डिवेंचर होल्डर से बिलो रहेगा। उसको पहले देगा, आपको बाद में देगा, वो आपको तो बराबर देते रहा है। और उसके बाद है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, ए टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर ऑन विच डिविडेंड एक्यूमुलेट्स इफ रिमेन अनपेड। ऐसा क्यूमुलेटिव का मतलब क्या हुआ कि हर अगला उसमें ऐड हो जाएगा, है ना। जैसे इकोनॉमिक्स में जाके तुम पढ़ोगे कि अगर एक ब्रेड खाए तो 10 यूनिट्स हमको मार्जिनल यूटिलिटी हुआ। मार्जिनल यूटिलिटी, कोई चीज के खाने से जो यूटिलिटी हुआ, तो फर्स्ट ब्रेड पर 10 हुआ, तो सेकंड ब्रेड पर 10 होगा कि 10 से ज्यादा हुआ कि कम होगा। कोई भूखा आदमी बैठा हुआ है होटल में खा रहा है, व्हाट विल हैपन?
फर्स्ट ज्यादा होगा ब्रेड पर 10 हुआ, सेकेंड ब्रेड पर क्या होगा? सर, और बढ़ जाएगा ना। सेटिस्फैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? यूटिलिटी। बढ़ेगा। यूटिलिटी का मतलब कि तुम खा रहे हो तो तुमको संतुष्टि मिल रहा है। एक हम्म। रोटी जब खाए तो तुमको वाह, 10 के बराबर संतुष्टि है। जब दूसरा रोटी खाओगे तो कहोगे हमको 9 के बराबर है। 10 नहीं बोलोगे, 8 बोलोगे, क्योंकि पेट तुम्हारा कुछ बढ़ गया है। तीसरा और कम कहते होते पांचवा रोटी पर पहुंचोगे तो कहो, अब हमको नहीं चाहिए। इसे हम्म। देखो, कोई जो भोज चल रहा है, वो 1 घंटा चला, उसका सब आदमी उठ के हाथ धो के निकल गया। इनफाइनाइट से वो खाते हुए नहीं रहता कि इन्फिनिटी बैठे हुए खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी उस पर लागू होता है। जैसे जैसे ब्रेड बढ़ेगा, मार्जिनल यूटिलिटी घटेगा। तो अगर मान लीजिए पहले ब्रेड पर 10 है, तो दूसरे ब्रेड पर तुमको 10 नहीं होगा, थोड़ा कम हो जाएगा। तीसरे में और थोड़ा कम होगा, चौथे में और कम होगा, पांचवे में और कम होगा, छठा में 0 हो गया, और सातवां अगर हम्म। खिला दिया तो -2 हो गया, मैंने वोमिट कर दिए, वोमिट कर दिए, इतना खाए कि। तो कहता है कि जो 0 हो गया, जहां मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गया, इसका मतलब है कि आपका टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो गया। टोटल यूटिलिटी क्या हो गया? मैक्सिमम। तो ये बात जो है, ये रोटी के संदर्भ में है। शेयर के संदर्भ में भी यही बात लागू होगा। जब आपके पास बहुत ज्यादा शेयर हो जाएगा तो उसका यूटिलिटी धीरे धीरे क्या होगा? घटेगा। एक हाँ। से एक शेयर रहेगा तो एकदम उसी के लिए लगे रहिए कि हमको मिल जाए, हमारा पैसा मिले ही मिले। लेकिन बहुत ज्यादा जिसको शेयर है, तो और उस तो क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव हो गया कैसे? कि ये पहला अगर 10 है तो 10 आप यहाँ क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा, जुट जाएगा ये। यहाँ हम्म। आगे बढ़िएगा तब इससे जुट जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 18 + 6। तीसरे ब्रेड पर क्या होगा? 18 + 6 कितना होगा? 24। है 24, 18 + 6। 24। यहाँ क्या हो जाएगा? 28। यहाँ क्या हो जाएगा? 30। और यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ 0 है, मतलब 30 हम्म। रहेगा। कितना रहेगा? 30। 30 भी यहाँ रिपीट होगा, 30 रहेगा। और यहाँ क्या हो जाएगा? और अगर उसके बाद भी खिलाएगा जबरदस्ती, तो माइनस का मतलब कि वोमिट कर दिया, तो 30 घट के हम्म। फिर मान लीजिए हो जाएगा, यहाँ 30 है, तब तो 30 नहीं रहेगा, -2 कीजिए, कितना हो जाएगा? 28। ये एक सिंबॉलिक आपको बता रहे हैं कि इफ यू हैव 1 शेयर, तो उसका ट्रीटमेंट। और बहुत सारा शेयर आप लिए हुए हैं, तब वो आपका जो इंजॉय कीजिएगा प्रेफरेंस शेयर वाले को। इसलिए कहता है कि दे ऑल्सो एंजॉय प्रायोरिटी ओवर द इक्विटी शेयर होल्डर इन पेमेंट ऑफ सरप्लस। सरप्लस हो रहा है तो पहले पेमेंट उसको देगा। बट इन द हम्म। इवेंट ऑफ लिक्विडेशन, जैसे बैंक फेल कर गया, अब बैंक में तुम्हारा 10 लाख रुपया है, बैंक फेल कर गया, तो बैंक का रूल है कि हम 5 लाख रुपया ही आपका इंश्योर कर रहे हैं। तो 5 लाख आप कर दिए, 10 लाख जमा। बैंक अगर फेल हम्म। कर गया, तो बैंक फेल कर गया तो उसको फेल करने को क्या बोला जाता है? लिक्विडेशन, माने बंद हो रहा है बैंक। हम्म। तो बंद हो रहा है तो आपको वो कितना रुपया देगा बैंक? 5 लाख। क्योंकि इंश्योरेंस बैंक का है 5 लाख, तो बैंक में जो भी रुपया आप रखिए वो कोई रोकेगा नहीं। लेकिन आपका कितना रुपया जो है इंश्योरेंस किए हुआ है बैंक? एक कस्टमर का 5 लाख। 5 लाख। आप जमा किए हुए हैं कितना? 10 लाख। 10 लाख। बैंक फेल कर गया, मान लीजिए अभी हाल में बैंक फेल किया है, तो हाँ। बैंक फेल कर गया, तो सब आदमी उसके गेट पर पहुंच जाएगा कि हमारा पैसा वापस करो। हम्म। तो फेल कर गया है तब कहाँ से पैसा देगा वो? तो इंश्योरेंस किए हुआ है, तो हर आदमी का नाम है इंश्योरेंस का वो पेमेंट करता है इंश्योरेंस कंपनी का।
आग लग गया, आप अगर फायर इंश्योरेंस किए हुए हैं ताकि वो देखेगा कितना चीज जला, और उतना पैसा आपको क्या करे, दे देगा। बड़ा बड़ा फैक्ट्री में आग लग गया, अब फिर देखोगे फैक्ट्री वापस फिर सज धज के तैयार हो गया। कहाँ से हुआ भाई? तो इंश्योरेंस क्यों हुआ है? इंश्योरेंस का पैसा जमा कर रहा है और आग नहीं लगा, फिर भी उसको पैसा हर साल जमा करना है कि नहीं करना है? करना। तो एक इस पर कहावत है कि एक आदमी के घर में ड्राइंग रूम में एक छोटा सा फायर एक्सटिंग्विशर, देखोगे कि कार में आजकल लोग लगाए रहता है। फायर एक्सटिंग्विशर लाल रंग का एक बॉटल टाइप का रहता है, वो कार में हम्म। लगाता है। अब बड़ा साइज का रहता तो होटल में देखोगे, जाओगे तो लगा हुआ रहेगा कोई भी प्लेस में। तो छोटा सा फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो, है ना, छोटा हम्म। सा जो होगा उसको लगा देगा ड्राइंग रूम में कहीं, और हर साल आके उसको रिन्यूअल करेगा और फिर नया लगाएगा। और साल भर में कोई ऐसा कुछ काम हुआ नहीं, जला नहीं कुछ, तो वो एक्सपायर कर हाँ। गया तो ले गया, फिर नया लगा दिया। तो उसकी वाइफ एक हम्म। दिन कही कि आप जो है एकदम पागल हैं, आपको कोई नॉलेज नहीं। बोले, क्यों? तो ये हर साल आप लगाते हैं ड्राइंग रूम में, लेकिन आज तक यूज हुआ है? अब देखिए। तो बोला कि तुम क्या सोचते हो कि तुम आग लगाओ, हम उसको बुझावें? अरे वो रखा हुआ है रिस्क के लिए कि अगर आग लग जाए तो बुझाएंगे, अगर नहीं आया तो अच्छी बात है, और जो इंस्टॉलमेंट हम्म। किए तो ठीक है। बहुत आदमी जो है LIC कराता है, तो LIC कराता है तो उसको हर महीने में पेमेंट करना है, लेकिन हम्म। पैसा उसको मिलेगा कि उसके मरने के बाद उसकी वाइफ को या उसके बेटा को मिलेगा? किसको मिलेगा? तो अगर जिसके वो नाम आदमी पे करवाया मर, उसको। है जिसका नाम होगा, हाँ। लिखा होगा, वाइफ लिखा होगा तो वाइफ को, बेटा लिखा बेटा, जिसको मिला होगा। लेकिन नहीं मरा तो किसी को देना पड़ेगा उसको? नहीं। नहीं जी। तब कोई कहेगा कि हम लाइफ इंश्योरेंस कराए, हमको कोई फायदा नहीं। अरे भाई, लाइफ इंश्योरेंस कराए होगे सडनली, लाइफ अगर किसी कारण से गड़बड़ हो गया, आजकल तो कारण भी है, आप सोचो ना भाई। अहमदाबाद से हवाई जहाज उड़ा ऊपर, और 20 मिनट के हाँ। अंदर फिर गिर गया, वो सब आदमी हम्म। उसमें जल के, एगो आदमी छिटक के बाहर निकल गया, वो बच गया। और जब वो गिर रहा था तो एक आदमी स्कूटर से वहां से क्रॉस कर रहा था, वो लपेट में आ गया तो वो मर गया, जबकि हाँ। हवाई जहाज पर नहीं था। लेकिन वो हॉस्टल के बगल से वो गुजर रहा था, एक स्टूडेंट के हॉस्टल पर गिर गया। तो उस व्यक्ति को तो हाँ। प्लेन पर चढ़ा भी नहीं है, मर गया वो। तो हम्म। काउंटिंग हो रहा था, तो काउंटिंग 132 मान लीजिए हो गया है, वो कह रहा है हम जिंदा हैं। तो ये कौन है भाई? तो पता लगा कि भाई तो स्कूटर से जाने वाला आदमी था, वो दब गया। तो रिस्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर विच यू गिव मनी। अब कोई थोड़ी चाहेगा कि रिस्क को हमको हो जाए। हवाई जहाज पर हम लोग जो बैठते हैं तो भगवान भरोसे है, वो जैसे अप करेगा उड़ता है, उसके बाद से वो ऊपर में हम्म। उड़ रहा है, उतरता है। तो कहता है कि रिस्क जो है वो, कोई जरूरी नहीं कि रिस्क आपको आ ही जाए, आप LIC को पेमेंट कीजिएगा। लेकिन दूसरी बात जो हम आपको बता रहे हैं कि एक होता है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस का अगर आप पेमेंट किए हुए हैं, तो अचानक आपकी तबीयत खराब हो गई, तो आप 5 स्टार होटल जैसे होता है उस तरह का बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल में समझिए हॉस्पिटैलिटी होटल वाला ही है। वैसे ही बो लगा करके आपको बहरा आवेगा, और आपका नाश्ता पानी चाय दूध देगा। बेड भी उसी तरह हम्म। का रहेगा, एयर कंडीशन पूरा। कभी देखे हो कि नहीं कोई बड़ा हॉस्पिटल को? हाँ सर देखा है। कहाँ, कोलकाता में कि दिल्ली में, कहाँ? तो दिल्ली में देखा है, कोलकाता में भी देखा है, पेडलेस तो है काफी हाँ। बड़ा। तो अब वो भीतर का जो एम्बियंस है, जो फैसिलिटीज है वो है, और आप उसमें आके सो गए, हम्म। और आप सचमुच में आपके सिर में दर्द नहीं है, लेकिन आप हम्म। बहाना करके आ गए और उसमें बैठ गए। आप पूछता है क्या हो रहा था, सिर में दर्द कहाँ हो रहा है, लेफ्ट राइट। अब सिर के राइट साइड में जो है ब्रेन है, राइट साइड का पोर्शन जो हम लोग का मेमोरी पोर्शन है, लेफ्ट साइड कुछ है हम्म। इस तरह का है। और 15 दिन रह गया, उसके बाद अंत में आया कि भाई आपका सब चीज ठीक है, तो हो गया। अब उसमें मान लीजिए 1 लाख, बड़ा सा है हॉस्पिटल, तो 1 लाख रुपया उसका बिल हम्म। बना।
तो बिल कौन देगा? ये आदमी देगा कि जो इंश्योरेंस वाला है वो देगा? सर जो इंश्योरेंस वाला है उसको देना चाहिए। इंश्योरेंस, अरे सॉरी, हाँ। हाँ श्योर, ठीक बोल रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देर इज ए डिफरेंस बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। इन लाइफ हम्म। इंश्योरेंस कोई भी आदमी उस लाइफ को खत्म करके लेना नहीं चाहेगा, वो चाहेगा आप जिंदे रहे। कोई चाहेगा कि मर जाए पैसा मिले? हम्म। वो पागल होगा कोई ऐसा सोचेगा? नॉर्मली कोई ऐसा नहीं सोचता है कि लाइफ इंश्योरेंस का 5 लाख। आजकल देखोगे टेलीविजन में देखा था 1 करोड़ का कीजिए, 1 करोड़ का कीजिए। आए वो सीन भी दिखाएगा कि कोई औरत बैठी हुई है, उसका हस्बैंड मर गया है, आइए आके कहता लीजिए 1 करोड़ रुपया दे दीजिए, पेमेंट आपका हो गया। तो कहने का मतलब हम्म। है कि देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। कहीं कोई इंटरव्यू में पूछ दिया तो यस, इन लाइफ इंश्योरेंस person who has taken life insurance cannot claim to use it because when he will die, that will be useful for the rest of the members of the family or wife or son. But health हम्म। insurance are generally used by those rich person living in a five-star hotel type hospital and having problem in brain. This is very sensitive part. One cannot हम्म। open it just now. So they will wait for 10 days and then he will say, oh, okay, I am now all right. All right. He will leave. And 2 lakh, 5 lakh rupees company will have to pay. What I want to communicate to you that there are two types of insurance: life insurance, health insurance. Health insurance is sometimes cheated by the client, but life insurance cannot be cheated by client. So हम्म। likewise, if you have preference share, you are getting payment first, and the right shares and equity shares are secondary. But when there is a failure of the company, जो liquidation कहते हैं कि बंद कर रहे हैं, अब हम फैक्ट्री बंद कर रहे हैं, है ना? बिहार में एक फैक्ट्री था, हम्म। लारा। लारा का मतलब क्या हुआ? अ, एल एल फॉर लालू, आर फॉर राबड़ी। जो हमारे यहाँ मुख्यमंत्री थे 15 साल, हाँ हाँ हाँ। लालू जी थे 15 साल। अब उनकी मिसेज राबड़ी देवी थी शायद 5 साल, तो 15 साल हो गया। एक कंपनी खुला हुआ है, लाड़ा कंपनी। कंपनी का नाम क्या है? लाड़ा कंपनी। अब लोग समझ रहे हैं लाड़ा, जो समझदार है वो समझ गया कि लालू राबड़ी कंपनी। और अभी जो है हम्म। केस खुला है, उसमें उस पर केस चल रहा है। इलेक्शन में उसका बेटा भी खड़ा हुआ है अभी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनना चाहता है। वो भी हम्म। उसमें इन्वॉल्व है। तो कहता है कि कोई भी शेयर आप खरीदते हैं, इक्विटी शेयर जनरल है, राइट शेयर हुआ सेकंड, बोनस शेयर हुआ हम्म। कि आपको खुश होके कंपनी दे दिया बोनस शेयर, लीजिए, पैसा नहीं लिया लेकिन आपको दे दिया। आपको देना है मान लीजिए 5 लाख एक बोनस, तो 5 लाख हम्म। बोनस नहीं देके 5 लाख का आपको एक शेयर दे दिया। बात फॉलो किए? सब शेयर ही है, लेकिन इक्विटी शेयर तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि बजाते वो बिकेगा, उसको खरीदेगा वो, और वो जाएगा किसके पास खरीदने के लिए? खरीदने के लिए किसके पास जाता है? सर एक बार रिपीट करेंगे क्वेश्चन, अपन आवाज कट। कोई शेयर खरीदने के लिए किसके पास जाता है? या तो ऑनलाइन जो पढ़े हम लोग उससे करता है, ब्रोकर। या ब्रोकर के पास जाता है। ब्रोकर। ब्रोकर से या फिर ट्रेडर्स, हाँ। हाँ, ब्रोकर के पास जाएगा, नहीं तो खुद आप अगर ऑनलाइन सब जानते हैं तो कीजिए। वो भी ऑनलाइन तो हो ही गया है जो हम लोग देखे हैं। तो हम्म। इक्विटी शेयर जो है वो जनरल चीज है, आप अपना चयन कीजिए, खरीदिए। उसके बाद जो है हम्म। राइट शेयर का क्या हो गया कि द इशू ऑफ न्यू सिक्योरिटी टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एट रेशियो। जैसे शेयर निकला ना, तो उसने कहा कि हम्म। देखो भैया, ये हमारा पहले से लिए हुआ है शेयर, इसलिए हम 30% शेयर अपना जो है, नया कंपनी खोल रहे हैं, 30% हम अपना पुराना जो हमारा शेयर लिए उसके लिए करते हैं। तो एक रेशियो हो गया कि भाई 70% बेच दीजिए बाजार में। लेकिन
30% किसके नाम रखिए? जो आपका पहले से शेयर खरीदे हुआ है। हाँ। तो पहले से शेयर खरीदे हुआ इक्विटी उसके पास है आपका, तो नेचुरली उसको वैल्यू कीजिएगा आप। तो इसलिए इक्विटी शेयर जो हो गया वो जनरल हुआ, कोई आदमी खरीदा, पहला अगर खरीदा इक्विटी शेयर तो किससे खरीदेगा? कंपनी से। फिर कंपनी नया कोई इशू निकालता है तो उसमें लिख देगा कि जो आदमी हमसे पहले हमको शेयर किया उसको हम 30% शेयर उसी को देंगे। तब उस शेयर का नाम इक्विटी शेयर नहीं होगा, उसका नाम क्या हो जाएगा? राइट शेयर्स। राइट शेयर्स। 30% वाला वो कौन होगा? जो पहले खरीदे हुआ है। हम्म। तो मान लो तुम्हारा मकान है, कोई किराएदार रह रहा है, तुम्हारा मकान दिल्ली में भी है, वहां वो ट्रांसफर उसका हो गया, तो बोलेगा सर हमको आप हम्म। वहाँ अगर दे दीजिए तो हमको अच्छा रहेगा। तुम उसको जान रहे हो तो कहा ठीक है, हम तुमको वहीं वहाँ किराएदार रखे। तो उसे एक प्रेफरेंस हो गया ना कि हम पहले भी आपके किराएदार थे। तो उसी तरीके से हम्म। पहले ही हम आपका शेयर खरीदे हुए हैं, इक्विटी शेयर। अभी नया आप कंपनी में लॉन्च कर रहे हैं राइट शेयर। तो राइट इशूज या राइट शेयर में जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होता है उसके लिए रेशियो रख देता है 2:3। हम्म। तो उस रेशियो के मुताबिक कि एवरी 3 शेयर पर वो 2 शेयर प्राप्त करने का इंटाइटल होगा। 2 शेयर प्राप्त करने के लिए वो इंटाइटल हो जाएगा। हम्म। उसका था बोनस शेयर की कंपनी में बहुत सारा काम कर रहा है और वो अच्छा काम कर रहा है और कंपनी को मान लीजिए बोनस देना है, तो बोनस में कैश नहीं दे के शेयरें दे दिया, बोनस शेयर। प्रेफरेंस शेयर क्या हो गया है कि इसमें फिक्स डिविडेंड, कैलकुलेटेड फिक्स रेट, इसका पेमेंट होगा सबसे पहले उसको। लेकिन जब लिक्विडेशन होगा तब इसको वैल्यू नहीं करेगा, कहेगा तुम पहले आवेंगे इक्विटी वाले को, जो हमारा सबसे पहला ग्राहक है, जो हमारा पहला शेयर खरीदता है और रिस्क कितना उठाता है, उसको पहले बांटेंगे तब आपको देंगे। जैसे कि बैंक फेल कर गया, अब बैंक को कोई पूछता नहीं कि कितना रुपया का इंश्योरेंस है, वहां 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस है। कोई ऐसा आदमी नहीं है बैंक में जिसका 5 लाख हो, किसी का 10 लाख, किसी को 20 लाख। अगर बैंक फेल कर गया तो लाइन लग जाएगा तो पूछेगा आपका कितना है, तो उसके आधार पर ही वो देगा कि पूरा पैसा आपको नहीं देगा, जो भी हो पहले 5 लाख रुपए आपको देगा, बाद में केस कीजिए जो होना होगा वो। हम्म। उसका था क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। ये जो टाइप ऑफ शेयर है इसमें भी डिविडेंड पेएबल है, सेम accumulates if not paid after a specified date, these shares will be converted into equity capital। अब मान लीजिए आपको शेयर का आपका डिविडेंड आने वाला है और आने वाला लेकिन वो पेड नहीं हुआ, तब क्या करेगा कि उतने ही अमाउंट का आपको एक इक्विटी कैपिटल के रूप में कन्वर्ट कर देगा। ये सब बात है कि जो आदमी आपके साथ है उससे जुड़े हुए। कोई क्वेश्चन? इसमें सब समझ गए बात को? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? आगे नहीं बढ़े? सर। हाँ आगे सर। बढ़े? हैं? हाँ सर। हाँ। अच्छा, अब हम लोगों का जो टॉपिक है जो इससे जुड़ा ही हुआ है वो है बॉन्ड। हम लोग सभी जानते हैं शेयर और बॉन्ड यही दो चीज इसमें रहता है। तो बॉन्ड है, हम्म। और बॉन्ड में सबसे नंबर 1 पर आता है बॉन्ड को डिफाइन क्या करते हैं? बॉन्ड इज ए नेगोशिएबल सर्टिफिकेट evidencing indebtedness
it is normally unsecured. A debt security is generally issued by a company, municipality, or government, lends money to the issuer, and in exchange, the issuer promises to repay the loan amount on a specified maturity date. The issuer usually pays the bondholder period interest payment over the life of the loan. The various types of bonds are as follows. कहता है कि बॉन्ड क्या है, व्हाट इज बॉन्ड। पहले तो है, पहला जो तुमको बोलना है, व्हाट इज बॉन्ड। तो डिफाइन करना है कि बॉन्ड इज ए नेगोशिएबल सर्टिफिकेट evidencing indebtedness. एक लाइन, बॉन्ड इज ए नेगोशिएबल सर्टिफिकेट evidencing indebtedness. It is normally unsecured. A debt security is generally issued by a company, municipality, or government, lends money to the issuer, and in exchange, the issuer promises to repay the loan amount on a specified maturity date. The issuer usually pay the bondholder periodic interest payment over the life of the loan. The various types of bonds are as follows. तो कह रहा है कि बॉन्ड जो है, डिफाइन क्या करेंगे, बॉन्ड इज ए नेगोशिएबल सर्टिफिकेट एविडेंसिंग इंडेटनेस। बोलो, तुम बोलो ना इस लाइन को। हाँ सर, bond is a negotiable certificate evidencing indebtedness. It is normally unsecured. बोलो, मैं पूरा बोलूं ये वाला पैराग्राफ? पूरा पैराग्राफ पढ़ दो ना। Bond is a negotiable certificate evidencing indebtedness. It is normally unsecured. A debt security is generally issued by a company, municipality, or a government agency. A bond investor lends money to the issuer, and in exchange, the issuer promises to repay the loan amount on a specified maturity date. The issuer usually pays the bondholder periodic interest payments over the life of the loan. The various types of bonds are as follows: zero coupon bond, convertible bond, and treasury bills. Okay. ये जो है एक्चुअली है नेगोशिएबल है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ये नेगोशिएबल सर्टिफिकेट। नेगोशिएबल सर्टिफिकेट, बॉन्ड ये नेगोशिएबल सर्टिफिकेट, ये क्या बतलाता है, शोइंग इंडेटनेस। इंडेटनेस का मतलब क्या होता है, कर्ज में फंसा रहना। इंडेटनेस का मतलब क्या होता है, कर्ज में वो फंसा सब रहना। डेट में ऑलरेडी डेट में नहीं फंसा हुआ है, हाँ, डेट में नहीं फंसा हुआ है, क्या बोले, डेट में नहीं फंसा हुआ है। नेगोशिएबल सर्टिफिकेट शोइंग indebtedness. It is normally unsecured. Indebtedness का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा? सर एक बार देखता हूँ गूगल पर। देखो उसमें गूगल में पूछो अनसिक्योर, ये अनसिक्योर भी रहता है। इंडेटनेस का मतलब हुआ कर्ज में डूबा रहना, उसे तुम देखो ना क्या कहता है। डेट का मतलब हुआ कर्ज, इंडेटनेस
सर इन डेट मतलब कंडीशन ऑफ ओनिंग मनी। कंडीशन ऑफ ओनिंग मनी। कंडीशन ऑफ ओनिंग मनी। और भी कोई हम्म। अल्टरनेटिव? और अल्टरनेटिव है? सर देखता हूँ, द स्टेट ऑफ ओनिंग मनी टू अनदर पार्टी और द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज ओन्ड। ओनिंग मनी अदर पार्टी लिखे हुआ है ना? हाँ। हाँ, तो वही ना कर्जा हो गया। वही बात हम कर रहे हैं। हाँ। पूछो इंडेटनेस का हिंदी क्या होता है, पूछो तो। गूगल से पूछो ना, बता देगा हाँ वो। सर। इंडेटनेस का हिंदी बताइए। कर्जादारी। कर्जा। कर्जदारी सर, कर्जदारी। कर्जदार है? हाँ। कर्जादार है कि कर्जदार है? कर्जदारी। कर्जदारी लिखा हुआ है। कर्जदारी, ठीक है, ठीक बोल रहा है। कर्जदारी माने इंडेटनेस का मतलब हो गया कर्जा में फंसा होना। और इसीलिए बॉन्ड लिख के दिया जाता है कि हम आपको कर्जा में आप फंसे हुए हैं, इंडेटनेस है। नेगोशिएबल सर्टिफिकेट शोइंग इंडेटनेस। अब इसका नियम है कि जो भी बॉन्ड आप लिए हुए हैं उसको आपको समय पर जब मैच्योर करेगा तो आपको पैसा जो है द बॉन्ड होल्डर पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट ओवर द लाइफ ऑफ लोन। जितने दिन तक ले वो बॉन्ड रहेगा आपको इंटरेस्ट पेमेंट होता रहेगा। तो अब इसमें कहता है जीरो, जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड। दूसरा है कन्वर्टिबल बॉन्ड। तीसरा है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल्स। जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब क्या हुआ कि बॉन्ड इशूड एट ए डिस्काउंट and repaid at a face value. No periodic interest is paid. The difference between the issue price and redemption price represents the return to the holder. The buyer of these bonds receives only one payment. क्या मतलब हुआ इसका मतलब समझो। जीरो कूपन बॉन्ड कोई खरीदे हुआ है ना, हम्म। तो उस बॉन्ड पर उसको किसी भी तरह का डिस्काउंट या रीपेमेंट एट द फेस वैल्यू नहीं होगा। वो पैसा आपका वहां फंसा रहेगा। नो पीरियोडिक इंटरेस्ट पेड। उस कागज पर लिखा रहेगा कि आपको एक बार ही पेमेंट होगा। कब? जब मैच्योर करेगा बॉन्ड। तो बॉन्ड ले लिया, चला गया। अभी इंडिया बॉन्ड एक निकला था, इंडिया बॉन्ड, इंडिया रिसर्जेंट बॉन्ड। तो अमेरिका का बहुत लोग आकर के उसको ले लिया और अच्छा इंटरेस्ट था कि आपको वन टाइम जब आपका पेमेंट हो जाएगा 5 साल, तो 5 साल बाद आइए आपको पूरा जो पैसा मिल जाएगा, बीच में कुछ नहीं मिलेगा। और ये बॉन्ड जो है जीरो कूपन बॉन्ड इसको कहेंगे कि अगर आपके पास जीरो कूपन बॉन्ड है तो आपको एट प्रेजेंट कुछ नहीं लाभ होगा, क्योंकि आपका बॉन्ड जो है रखा रहेगा। और डिफरेंस बिटवीन इशू प्राइस रिडम्पशन प्राइस, मैंने जब आप खरीद रहे हैं 10 लाख का है और जब आपको लौटाएगा तो 20 लाख, तो यही आपके दिमाग में होना चाहिए कि लौटाएगा तो 20 लाख लौटाएगा। बीच में आपको नहीं देने वाला है वो, मैच्योरिटी होगा तभी देगा।
इसलिए इसको जीरो कूपन बॉन्ड बोलते हैं। और जीरो कूपन बॉन्ड इशूड एट ए डिस्काउंट एंड रीपेड एट ए फेस वैल्यू। डिस्काउंट का मतलब क्या हो, जीरो कूपन कोई ले रहा है तो कह रहा नहीं कि हम आपसे पैसा नहीं लेंगे, 5 साल बाद एक बार दीजिएगा। तो जो फैक्ट्री वाला है उसको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? फैक्ट्री मालिक को वो अच्छा बुरा लगेगा लगेगा कि सर। बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा कि उसके पैसे हाँ। से हम बिजनेस कर रहे हैं, उसको देना कुछ नहीं। देना कब है? 5 साल बाद। ऐसे ही सोचिए 5 साल बाद दुनिया रहेगी कि नहीं रहेगी। बार बार देख रहे हैं गाजा पर हो रहा है कि शांति हो जाएगा, धड़ाक से गिर जाता है बम। तो फ्यूचर की बात है ना, लेकिन है, लिखित है कि आपको वो देगा। हम्म। बात फॉलो कर रहे हो? जीरो कूपन बॉन्ड अगर तुम खरीदे, मान लो कि किसी से खरीदे, बिरला से खरीदे, तू निकला जीरो हम्म। बॉन्ड बेच रहे हैं, सरकार भी बेचती है, वो भी बेचता है। तो कूपन बॉन्ड जो है आप खरीद लिए, उसमें लिखा हुआ है कि फेस वैल्यू है इसका 1 लाख, और हम्म। एक बार आपको हम 1 लाख रुपए आपको दे देंगे, ठीक है। लेकिन अभी आप हमको ये जो 1 लाख का कागज है, तो हमको केवल आप 50,000 दीजिए। तो तुम दिए हमको हम्म। 50,000, और हम तुमको बॉन्ड लिख के दे दिए 1 लाख का। और 5 साल बाद मैच्योर करेगा, जो लिखा हुआ है वही मिलेगा आपको। हम्म। तो मालिक को फायदा हो गया कि भाई ये तो धनवान आदमी है, ये थोड़ी भिखमंगा है जो तुरंत आ जाएगा कि दीजिए। तो लिखा हुआ है, इसलिए वो ये चीज, जीरो कूपन बॉन्ड वही खरीदेगा जो कि धनाढ्य है, उसको पैसे की कमी नहीं है, और 5 साल तक ले वेट कर सकता है। तो अब जीरो कूपन में कितना मिलेगा वो तो लिखा हुआ है, क्या वो 5 लाख मिलेगा? लेकिन आपसे वो लिया 2.5 लाख, 2 लाख, और दे रहा है 5 लाख। तो बिजनेसमैन उसमें पैसा फंसाएगा कि नहीं फंसाएगा, सो बोलो। जिसके पास एनफ पैसा है, एनफ पैसा का मतलब है कि उसको अपना खाने पीने या परिवार खाने पीने या बच्चा का पढ़ने लिखने, कार मोटर। अमेरिका में क्या प्रॉब्लम है कि एक घर में हस्बैंड और वाइफ है, और उसका हम्म। बच्चा है, मान लीजिए कि उसका बच्चा है, लड़का या लड़की, कोई भी, 2 गो है। हम्म। तो उस मदर के साथ, फादर के साथ वो कब तक रहेगा? तुम अनुमान लगाओ। सर 18 साल में। ठीक बोल रहे हो। मैट्रिक पास करने तक मदर फादर के पास रहेगा। जैसे मैट्रिक पास किया, हम्म। तो ही विल लीव द हाउस, एक फ्लैट ले लेगा। और हाँ। उसको सरकार की ओर से भी पैसा मिलेगा कि तो अब रह रहा है, अब कहाँ से खाएगा पिएगा। और तुरंत उसको जॉब भी मिल जाएगा। जॉब वहाँ क्या है, एक कागज पर लिखा रहेगा कि इनको परमिशन दिया गया कि 2 घंटा काम कर सकते हैं। 1 घंटा का चार्ज है 20 20 डॉलर, 1 आवर का। 2 घंटा मिल गया तो कितना मिलेगा तुमको? 40 डॉलर। हम्म। 40 डॉलर इंडिया में अगर रहता तो कितना हो जाएगा? 40 × 80 रखो, कितना हो जाएगा? 40 × 80 अराउंड 30,000 समथिंग शायद। 30,000 कितना 30,200 नहीं, होना 32,000 शायद होगा सर। है? 32,000 होगा ना। हाँ। तो ये तुमको इसलिए बता रहे हैं कि वहाँ हर स्टूडेंट को 3 आवर्स, फॉर कि पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो, इसलिए 3 आवर्स का देता है। तो वीक में 4 दिन दिया, वीक में 2 दिन वहाँ बंदे रहता है, सैटरडे संडे, जो अमेरिका में या कनाडा में कहीं काम नहीं होता है, सब आराम कीजिए आप। और उस दिन का पैसा भी नहीं मिलता है। जैसे हम लोग के बिहार में या इंडिया में क्या है कि संडे है, आज कौन दिन है, संडे है ना। हम्म। तो आज जो है, अमेरिका में रहते तो तुमको कोई पेमेंट नहीं मिलता। इंडिया में हो और नौकरी में हो तो तुमको आज आज का सैलरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। मिलेगा सर। तो यही कंट्री का अंतर हो गया। वहां देखिए कि सैटरडे संडे का सैलरी नहीं दे रहा है, लेकिन बाकी जितना दिन का सैलरी है वो यहाँ से कई गुना ज्यादा है। तो कोई नहीं कहता है।
वो पहले से प्लान किया रहता है कि सैटरडे संडे छुट्टी है, गाड़ी निकाला, समुद्र के किनारे चला गया, अपना एंजॉय कर रहा है। तो जीरो कूपन बॉन्ड जो है वो जैसे आप लिए, तो जिसके पास बॉन्ड है वो कर्जदार हो गया। भारतवर्ष भी कर्जदार था। $77 बिलियन उसको देना था विदेशी को। ईयर जान लो, हम्म 1991। 1991 बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है। $70 बिलियन मांगने के लिए आने वाला है, मान लीजिए फरवरी में। आज जनवरी महीने में $1 बिलियन है अमाउंट। जनवरी के 2 जनवरी को इंडिया के रिजर्व बैंक में कितना स्टॉक है? $1 बिलियन। आप फरवरी में या मार्च में या जुलाई में जो आने वाला है वो आएगा $47 बिलियन पेमेंट के लिए। तो देश का दिवालिया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? है ही नहीं डॉलर। डॉलर तो आप छाप नहीं सकते हैं, रुपया रहता तो छाप लेता है। हम्म तब भारत सरकार क्या डिसाइड की कि गोल्ड हमारे पास है, गोल्ड ले जाओ और ले जाकर बैंक ऑफ इंग्लैंड को गिरवी रख दो और वहां से उस पर लोन लेके आओ डॉलर पे। तो वहां से $80 बिलियन आ गया। आज जैसे ही सब विदेशी सब आया कि हमारा हो गया मैच्योर, तक ले जाइए। एक अलग स्कीम बना लिया कि उसमें और ज्यादा इंटरेस्ट हम देंगे। क्या दो ऑप्शन है, या तो आप कैश पेमेंट ले लीजिए, या नहीं तो जो हमारा नया आया है बॉन्ड उसको खरीद लीजिए। इससे कंट्री वाज सेव्ड। अगर नहीं होता तो इसको कहा जाता है दिवालियापन। दिवालियापन जो है हिंदी में बोला जाता है, इंग्लिश में दिवालियापन को क्या बोलते हैं? हाँ? क्या सर, ये दोबारा बोलिए। हिंदी में दिवालिया बोला जाता है कि तुम भारत सरकार कर्ज कर्ज पर रुपया लिया बॉन्ड देके, तो बॉन्ड वाला तो तुम जान लियो कि वो लेके चला जाएगा, यही बॉन्ड है, जीरो कूपन बॉन्ड है। हम्म तो हमारे यहाँ के बॉन्ड का नाम था इंडिया रिसर्जेंट बॉन्ड या इंडिया डेवलपमेंट बॉन्ड। अब विदेशी सब आया ले गया कि उसमें इंटरेस्ट रेट वहां से ज्यादा है। अमेरिका में इंटरेस्ट रेट है 2%, हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट है 7%। तो जो हम्म पूंजीपति है वो तो हर देश उसके लिए एक समान है। यहाँ जमा कर दिया, यहाँ ज्यादा रुपया मिल गया, यहाँ का बिजनेस उसको फायदा हुआ। हम कह रहे हैं कि रिसर्जेंट बॉन्ड जो हम लोग बेचे थे वो मैच्योर कर रहा है जुलाई में, ठीक है। आज जनवरी में हमारे यहाँ स्टॉक में है केवल $1 बिलियन, सब खत्म। इसे वो कहा जाता है इकोनॉमिक क्राइसिस इन इंडिया इन 1991 इन जनवरी। अब हुआ कि इसका सोल्यूशन कैसे होगा? तो उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे चंद्रशेखर, चंद्रशेखर ने कहा कि आप गोल्ड को ले जाइए बैंक ऑफ इंग्लैंड में गिरवी रखिए, वहां से डॉलर लेके आइए ताकि उसका पेमेंट हम लोग कर सकें। और इन दैट वे हम लोगों का माने इज्जत बच गया और सब आया ले गया, तो हम लोगों के ऊपर में उसको विश्वास हो गया कि आज इस देश में पैसा डूबेगा नहीं। फिर अगले बार पूरा करके दिया। अब मान लीजिए आप दौड़ा रहे हैं, टीचर है पढ़ा रहा है, लड़का समझ ही नहीं रहा है, तो फिर पढ़ा क्यों रहे हो? लड़का नहीं समझ रहा है तो पहले देखो क्या है नहीं समझ रहा है, पढ़ाने का हम्म तरीका बदलो, रिपीट करो, रिपीटेशन। हम इसलिए तुमको बुलवाते हैं, हम खुद बोलते हैं, तुमसे बुलवाते हैं कि सब पता चलेगा, समझ गया सब बात। हाँ जी। आज का जो जेनजी है वो बहुत पावरफुल है ना, वो चाहेगा तो सत्ता बदल हम्म देता है। नेपाल में बदल दिया ना, श्रीलंका में बदल दिया। तो कहता है कि जीरो कूपन बॉन्ड जो है वो एक तरह का कर्जदार हो गया वो आपका, और आप आइएगा आपको 1 लाख दे देगा, 1 लाख का अगर है तो 1 लाख दे देगा। लेकिन जो बेच रहा है जिस समय, उस समय वो नीडी है, टाटा बिरला जो भी हो, उसको एयरपोर्ट बनाना है, पैसा चाहिए। तो आपको 1 लाख का कागज दे दिया, आप दिए उसको 50,000। आप सोच रहे चल भाई 50,000 दे रहे हमको 1 लाख देगा 3 साल बाद या 4 साल बाद। बैंक से बहुत ज्यादा रेट रहता है।
शेयर में बहुत ज्यादा रहता है, इसीलिए लोग शेयर मार्केट में देखो दिन रात चक्कर काटता रहता है। और जो नहीं उतना है तो बैंक में गया, जो दिया सो दिया, फिक्स है ना, उसमें चेंज नहीं होगा। तो जीरो कूपन बॉन्ड का सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये नेगोशिएबल सर्टिफिकेट शोइंग इंडेटनेस, ये एक सर्टिफिकेट है जो आप कर्जदार है मेरे, ये कह रहा है और आप आइएगा, आपको हम लौटा देंगे। और ये एक तरह समझिए कि अनसिक्योर भी रहता है कि क्या होगा नहीं होगा। अगर हर महीने आप उससे लेते रहिएगा तो कोई आपको भीतर लगेगा चलो भाई कुछ तो आया आपको, यहाँ तो पूरा माल ले लिया, अब 5 साल बाद आइए। तो ये सब वही करता है जो बड़ा बड़ा कैपिटलिस्ट है। ऐसे भी उसका पैसा बैंक में पड़ा रहेगा तो क्या इंटरेस्ट मिलेगा, 7% मिलेगा। अगर वो चीज यहाँ डालेगा तो उसको 14% हो जाएगा, शेयर खरीद लेगा तो हो जाएगा 28%। एक एग्जाम्पल देते हैं कि एक ग्रो ऐप करके है जो कि शेयर बेचता है। ग्रो ऐप का नाम सुने हो? हाँ सर। देखना मोबाइल में रहता है ग्रो ऐप। वैसे ही उसमें रुपया तो सब निकाली, लेकिन 20,000 छोड़ दिए कि जाने रहने दो, हमको लगा कि सब गिर रहा है। अभी देखें कि 20,000 10,000 छोड़े हुए, अभी देखें कि वो 28,000 हो गया, मैंने 10 से 28 हो गया। अगर वही 10,000 बैंक में रहता तो कितना होता? 10,000 से थोड़ा बहुत बढ़ता, 1,000 जुटता उसमें। लेकिन शेयर में है कि अगर आपका शेयर अच्छा है तो वहां होगा। तो ये जीरो कूपन बॉन्ड को कैसे डिफाइन करेंगे, देख के बोलो ना। हाँ सर। A bond issued at a discount and repaid at a face value. No periodic interest is paid. The difference between the issue price and redemption price represents the return to the holder. The buyer of these bonds receive only one payment at the maturity of the bond. क्लियर है? मैच्योरिटी होगा तो एक पेमेंट आपको हो जाएगा, ठीक है। Hmm. तो ये हो गया जीरो कूपन बॉन्ड। अब आ जाओ कन्वर्टेबल बॉन्ड। कन्वर्टेबल बॉन्ड के बारे में क्या कहता है कि ए बॉन्ड गिविंग द इन्वेस्टर द ऑप्शन टू कन्वर्ट द बॉन्ड इनटू इक्विटी एट ए फिक्स्ड कन्वर्जन प्राइस। जैसे कोई कंपनी जो है वो इक्विटी बेच रही है और तुम्हारे पास बॉन्ड है, तो उस बॉन्ड को तुम चाहो तो इक्विटी उससे खरीद सकते हो। और उस बॉन्ड पर ऑप्शन लिखा हुआ रहेगा कि ये एट ए फिक्स्ड कन्वर्जन प्राइस, माने उसी कंपनी का तुम्हारे पास एक खरीदे हुए हो कन्वर्टेबल बॉन्ड, टाटा का खरीदे हुए हो, और टाटा का कोई नया प्लांट आया, तुम कहो कि हमको हमारा जो कन्वर्टेबल बॉन्ड जो है उसी को ले लीजिए और हमको इक्विटी दे दीजिए। इक्विटी हो गया पहला काम कि फैक्ट्री बना नहीं है, लेकिन वो बेच बेच के इक्विटी से पैसा उसको आता है। तो आप तो पैसा अपना फंसाए हुए हैं बॉन्ड में। तो बॉन्ड आप खरीदते समय किस तरह का बॉन्ड लिए? कन्वर्टेबल बॉन्ड। कन्वर्टेबल बॉन्ड में अलाउड है कि आप उसी कंपनी में अगर कोई नया इक्विटी आ रहा है तो आपका बॉन्ड जो है वो कैश में कन्वर्ट होकर आप इक्विटी खरीद लीजिएगा। मैंने बॉन्ड, कन्वर्टेबल बॉन्ड में बी रिप्लेस्ड बाई convert bond will be converted into equity at a fixed conversion price। जो कन्वर्ज करना चाहते हैं, जैसे मान लो कि ट्रेन में तुम सफर करो, तुम्हारा बेड है नीचे, नीचे को क्या कहते हैं? लोअर। लोअर है ना? ट्रेन में चढ़े हो कि नहीं? आए? कन्वर्टेबल बॉन्ड का डेफिनेशन क्या होगा? ए बॉन्ड गिविंग द इन्वेस्टर द ऑप्शन टू कन्वर्ट द बॉन्ड इंटू इक्विटी एट ए फिक्स्ड कन्वर्जन प्राइस। पहले से फिक्स्ड रहेगा कि इतना कन्वर्जन प्राइस है, हम आपका इक्विटी को कन्वर्ट कर देंगे। लास्ट है ट्रेजरी बिल।
ट्रेजरी बिल का क्या मतलब हुआ? शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म का यहाँ 1 ईयर होता है। शॉर्ट टर्म बियरर discount security issued by government as a means of financing their cash requirement. ओम, सर आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही। कहीं चले गए थे क्या? नहीं नहीं सर, यहीं पर था, म्यूट हो गया था इसलिए आवाज नहीं आ रही थी। ट्रेजरी बिल जो है कन्वर्टेबल बॉन्ड बता रहे थे तो तुम चले गए थे। तो नहीं नहीं सर, चला चला नहीं, सुन रहा था, सुनाई दिया पूरा। कन्वर्टेबल बॉन्ड जो है ऊपर हम्म। उसमें लिखा हुआ है, ए बॉन्ड गिविंग द इन्वेस्टर द ऑप्शन टू कन्वर्ट द बॉन्ड इनटू इक्विटी एट ए फिक्स्ड कन्वर्जन प्राइस। इसमें लिखा रहेगा कि आप जो सर्टिफिकेट हम आपसे खरीद रहे हैं, बॉन्ड खरीद रहे हैं कन्वर्टेबल बॉन्ड, उसको हम जब चाहें तो आपके किसी इक्विटी को हम इसी से भंजा लेंगे। हम्म। और भंजा करके हम आपका कन्वर्जन प्राइस पहले से फिक्स रहेगा कि अगर आप बॉन्ड को समय से पहले भजाना चाहिए, उसके बदले में इक्विटी खरीदना चाहिए, तो आप ऐसा कर सकते हैं। कन्वर्जन प्राइस उसमें लिखा रहेगा कि 100 का अगर है तो हम आपको कितना देंगे, कुछ कम देंगे, ये जो भी रहेगा लिखा रहेगा। तो कन्वर्टेबल बॉन्ड को क्या डिफाइन करेंगे, बोलो तो देख के। ए हम्म। बॉन्ड गिविंग द इन्वेस्टर द ऑप्शन टू कन्वर्ट द बॉन्ड इनटू इक्विटी एट ए फिक्स्ड कन्वर्जन प्राइस, बोलो। Convertible bond is a bond which gives the investor the option to convert the bond into equity at a fixed conversion price. क्या मतलब हुआ कि ए बॉन्ड गिविंग द इन्वेस्टर द ऑप्शन, उसको ऑप्शन दे रहा है टू कन्वर्ट द बॉन्ड, आप बॉन्ड को बदल सकते हैं इन इक्विटी, लेकिन एक शर्त लगा दिया एट फिक्स्ड कन्वर्जन प्राइस, जो पहले से प्राइस फिक्स कर दिए हैं वही प्राइस पर आपको देना है। अगर आपको इसमें फायदा हो रहा है तो आप कर सकते हैं। और लास्ट है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल्स को कहते हैं शॉर्ट टर्म। ट्रेजरी बिल जब भी होता है 1 साल का होता है, माने एक हम्म। साल तक का, 6 महीने का हो सकता है, लेकिन अप टू 1 ईयर। तो ट्रेजरी बिल जो है शॉर्ट टर्म 1 ईयर, अप टू 1 ईयर, बियरर डिस्काउंट सिक्योरिटी issued by a government as a means of financing their cash requirement। ये सब ऊपर वाला जितना बात हम लोग बनाए हैं ना, वो टाटा बिरला हम्म। डालमिया ये सब जो प्राइवेट है उसके लिए सब है। भारत सरकार जो है उसको भी पैसा चाहिए, और अचानक इतना पैसा चाहिए जो कि उसको पूरा नहीं हो रहा है टैक्स से, तो वो क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, कि वो ट्रेजरी बिल जो है इशू करेगा। ट्रेजरी बिल का मतलब क्या है कि सरकार द्वारा शॉर्ट टर्म लोन का कागज देना। शॉर्ट टर्म मतलब हम्म। 1 साल। और ये जो ट्रेजरी बिल आप मान लीजिए खरीदते हैं, तो वो सरकार इशू करेगी, और बियरर डिस्काउंट सिक्योरिटी इशूड बाय गवर्नमेंट एज ए मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग देयर कैश रिक्वायरमेंट। कभी कभी गवर्नमेंट के पास फंड नहीं रहता है, या फंड अचानक मान लीजिए युद्ध शुरू हो गया, भारत पाकिस्तान का भी युद्ध हुआ है ना, हम्म। किस कारण से हुआ है, क्या कॉज था? सर वो जो टेररिस्ट ने हमारे वो सोल्जर्स उनकी फैमिलीज को मारा था।
हमारे टूरिस्ट जो थे 26 शायद 26, वो पहलगांव में हाँ। एंजॉय कर रहे थे। हम गए हुए हम्म। हैं वहाँ, सोनमर्ग, खिलनमर्ग, गुलमर्ग। तो उसी में गुलमर्ग में सब एंजॉय कर रहा था। अब बंदूक लेके आया छवों की कितना, और सबको गोली मार दिया। हम्म। ये कभी नहीं हुआ था ऐसा। बहुत वार्ता था, बस उसमें कहीं जा रहा है ये करता है, लेकिन वो तो एक तरह से समझिए कि लोग वहां जा रहा है, खर्च कर रहा है, तो कश्मीरी को उससे फायदा हो रहा है। उसका होटल चलेगा, उसका टांगा चलेगा, उसका हॉर्स चलेगा, सब में पैसा कमाएगा। अब आप जाने वाले को मार ही दीजिएगा तो कोई जाएगा ही नहीं, आपका वीरान हो जाएगा। तो सरकार जो है देखा कि भाई तो मार दिया, अब उसको खोजने के लिए तो कौन सा ऑपरेशन का क्या नाम है? सिंदूर। हैं? ठीक बोल रहे हो, बोलो ना। सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर। हैं? ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप ही दूसरा क्या चल रहा है? जो बदमाशी करेगा वो पकड़ के मार के उसको जेल में डालेंगे। दूसरा शुरू हम्म। किया है ऑपरेशन महादेव। हाँ। ऑपरेशन सिंदूर अभी जो है रुका हुआ है। उसको आ, बि- अभी फ्रीज किए हुआ है, उसको एंड नहीं किया है, उसको अभी सस्पेंड कर दिया है। अब जो चल रहा है ऑपरेशन महादेव, इसमें ही देखें कि कितना पकड़ाया है इधर उधर से। हम्म। और ये जो है नदी बह रही है, और चुनाव नदी को नहीं। अब उधर देखिएगा, उधर पाकिस्तान है, इधर यहाँ से नजर भी आता है, वहां कोई आदमी बैठा हुआ है तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो दोस्ती रहने पर हम्म। अच्छी बात है, लेकिन अटैक करने लगेगा तो कोई रहना नहीं चाहेगा, भागेगा, इधर वाला भी भागेगा, उधर वाला भागेगा, बंजर हो जाएगा। तो ट्रेजरी बिल सरकार को कब लेना पड़ता है? जब टैक्सेशन से जो पैसा सरकार को आया, उसमें वो गवर्नमेंट को चलाने में सक्षम नहीं है। हम्म। हर आदमी जो रिटायर किया है उसको पेंशन देती है सरकार। और वो हाँ। कहेगी कि ना भैया हमको पैसा नहीं, पेंशन नहीं देंगे, ऐसा नहीं ना कहेगी सरकार। तो पैसा हम्म। घट गया तो पैसा कहाँ से लावे? तो तुरंत जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ट्रेजरी बिल, एक कागज है जिसमें लिखा हुआ है ट्रेजरी बिल, उस ट्रेजरी बिल को इशू किया और आरबीआई के द्वारा जो है उसको पूरे देश में बेच दिया। है। तुम जरा पता करोगे, हमको लगता है स्टेट बैंक को भी कहता है कि आप ही मेरा बेचिए, एक काउंटर खोल देता है। क्या कि आरबीआई तो सब जगह नहीं ना है। तुम्हारा कलकत्ता में है, हमारा पटना में भी है, लेकिन और हब जिला में तो है नहीं। तो हमको जैसा लगता है, यू कैन चेक इट, कि ट्रेजरी बिल्स आर सोल्ड बाय आरबीआई, और इट मे बी गिवन प्रायोरिटी टू ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कि तुम भी, स्टेट बैंक सब जगह है, उसके थ्रू उसको बेच देगा। जो भी खरीद लिया उस पर लिखा हुआ है ट्रेजरी बिल है, आपको इतने समय के बाद आपको इतना इंटरेस्ट के साथ पैसा मिल जाएगा। तो इसमें लोग बहुत, उस जो इंटरेस्ट रेट होगा वो ग्रेटर देन द एसबीआई। एसबीआई या कोई पंजाब नेशनल बैंक, चार गो बैंक का नाम लो तो, सर कौन कौन से? वही चार गो बोलो ना। एगो जैसे हम बोल दिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तुम तीन गो और एच डी नाम एफ बोलो। एच डी एफ सी है। एच डी एफ सी, और एक्सिस बैंक है। हाँ, एक्सिस बैंक है। एक्सिस बैंक, हाँ। और क्या हुआ? तीन गो हुआ, दुए हुआ। तीन है सर, और बैंक ऑफ इंडिया है। हाँ ठीक है। तो इस तरह से तुम देखोगे, वैसे ही तुम गूगल में पूछ के हमको अगले क्लास बताओगे कि हाउ मेनी बैंक्स आर गवर्नमेंट बैंक्स इंडिया में। ये लिख लो, इसको गूगल से देख के हमको बताओगे हाउ मेनी बैंक्स, उसका नाम, और हाउ मेनी फॉरेन बैंक्स आर ऑपरेटिंग इन इंडिया, और हाउ मेनी रूरल बैंक्स ऑपरेटिंग इन इंडिया, हाउ मेनी कोऑपरेटिव बैंक्स ऑपरेटिंग इन इंडिया। ये चार को जो नाम बताए, रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट बैंक,
और गवर्नमेंट का जो है नेशनलाइज बैंक, गवर्नमेंट नेशनलाइज बैंक, इसलिए उसको गवर्नमेंट बैंक मानता है कि उसमें चोरी चमारी नहीं होगा, जो पैसा है वहां सेफ है। लेकिन तुमको बता दिए हैं कि 5 लाख के लिए इंश्योरेंस कराए हुआ है, उससे ज्यादा अगर आप बैंक में जमा करते हैं तो उसका इंश्योरेंस नहीं ना होगा। 5 लाख उसका लिमिट है। लेकिन लोग कहता है कि भाई बैंक में ऐसा कैसे चोरी हो जाएगा, हम्म रेयर है होना, तो वो रख देता है। लेकिन आप किसी बैंक में जाओ, उसके बाद मैनेजर से बात करो कि हाउ व्हाट अमाउंट ऑफ वन कस्टमर इज इंश्योर्ड बाय यू। हम्म एक बार जानते हो, दिन में बैंक में जाओगे तो एगो हम्म सिपाही तुमको मिलेगा, गार्ड, हाँ बंदूक लिए गार्ड मिलेगा, ठीक है। हम्म लेकिन रात में जाओगे तो कोई नहीं है। बैंक में कोई अगर चोर घुस गया तो उसमें घंटी बजने लगेगा। और पुलिस की जो गश्त हम्म होती है, जिसमें पुलिस जीप में बैठ के देखते हो घूमता रहता है, तो उसका रूट हाँ बना रहता है, वो जाके और बैंक के पास थोड़ा देर रोकेगा हम्म कि ताला उला टूटा हुआ तो नहीं है। हम्म अब तुम देखोगे, एक सिनेमा है महेश बाबू का, बिजनेसमैन। महेश बाबू का नाम देखे हो? हाँ सर। बिजनेसमैन सिनेमा देखे हो? सर देखा नहीं हो पर नाम सुना है। हाँ, लेकिन तुम देख लेना इसको। ठीक है उसमें सर। उसमें जो है, पुलिस की गश्त आई आई, इसका जो ये मानी थी था, चोर माने लूटने वाला, ये लूटने के बजाय वहां पर पेंट उंट कर रहा है, आग उग लगा के कुछ कर रहा है, लग रहा है जैसे रिपेयरिंग हो रहा है। तो पूछा क्या हो रहा है, कहा कि बैंक में कुछ फर्नीचर सबको रिपेयरिंग चल रहा है। क्या वो क्यों चला गया, आता भीतर से चुरा उड़ा के सब लेके भाग गया। तो खैर ये सब कहानी है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि ट्रेजरी बिल, कोई पूछे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जीरो कूपन बॉन्ड, कन्वर्टेबल बॉन्ड एंड ट्रेजरी बिल, तो तुमको बोलना है ट्रेजरी बिल इज सेपरेट। ट्रेजरी बिल इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, issued by RBI, हम्म and it will collect money from the people because its interest rate is higher than commercial bank. तो जितना भी बड़ा बड़ा आदमी है, वो ट्रेजरी बिल आया कि 2 दिन तक ले खुला रहता है, 2 दिन में उसका, 3 दिन खोले रहेगा, 2 दिन में सब बिक जाएगा। सब सोचता है कि ट्रेजरी बिल लेंगे तो पहला तो इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, दूसरा कि सरकार का ही बॉन्ड है। ये बॉन्ड अगर तुम्हारे पास है और तुम कहीं पर कोई चीज व्यापार करना चाहते हो और गिरवी रखना है, अगर ई बॉन्ड रखते हो तो तुरंत ले लेगा, कहा भाई तो गवर्नमेंट का बॉन्ड है। प्राइवेट बैंक का लेने में कहेगा पता नहीं फेल कर जाए, क्या हो जाए। लेकिन इस पर तो कुछ नहीं बोलेगी, तो सरकार का है। तो ट्रेजरी बिल वेरी हाई वैल्यूड ये इंस्ट्रूमेंट। तो ट्रेजरी बिल का काम क्या है कि सरकार को जब पैसा घट जाती है, तो बराबर घटा ही रहता है, क्योंकि वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट में क्या है, बिहार में या किसी भी राज्य में बहुत सारा काम करना है, जैसे पैसा लगता है, सड़क बनाना है, नहर बनाना है, ये करना है, पार्क बनना है। तुम कोलकाता में हो, यहाँ 1971 में गए थे, तो उस समय मेट्रो का खुदाई हो रहा था, हम्म 71 में। और अभी जो है पटना में खुदाई उदाई होके मेट्रो लग गया। तो पटना में मेट्रो हो गया। और शुरुआत हुआ था कोलकाता से ही। उसमें ज्योति बसु थे, बहुत ही पावरफुल थे, कम्युनिस्ट थे। लेकिन उनके कम्युनिस्ट होने के बावजूद भी डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट बहुत अच्छा था। जो हुगली नदी है उसके पास बहुत सारा फैक्ट्री था, जो अभी की दीदी आई हैं तो सब फैक्ट्री गायब हो गया, भाग गया। ये थोड़ा हार्ड टाइप की हैं और इनका अपना स्टाइल है। टाटा को निकाल बाहर कर दिए। 13,000 करोड़ रुपया वो खर्च करके कार को बनाने के लिए रेडी हो गया था। 13,000 करोड़ इन्वेस्ट हो गया। जमीन जो लिए हुआ था, जमीन मालिक को पैसा दे दिया, और तब ही कही कि नहीं, आपको हम यहाँ से हटाएंगे।
तो वो सारा पैसा लॉस में गया और वो छोड़ के उसी समय मोदी जी जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, उस समय वो थे चीफ मिनिस्टर। कहाँ के चीफ मिनिस्टर थे? मोदी जी पहले कहाँ के चीफ मिनिस्टर थे? सर यूपी के थे ना? एक नहीं, मिनट। अ, यूपी नहीं, गुजरात। गुजरात, हाँ। तो गुजरात के ही चीफ मिनिस्टर थे, 3 साल रहे वहां, रहे तब आए यहाँ। यहाँ भी तीसरा साल इनका है, 6 साल हो गया होगा। तो चला गया हम्म। वहां ही, गुजरात। अब गुजरात में बन रहा है। तो अच्छा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो बॉन्ड, and bond is a negotiable certificate showing indebtedness, zero coupon bond, convertible bond and treasury bond. इसको याद करोगे, अगले क्लास में हमको इस तुम जो लिखते हो उसको दिखाओगे। हम्म। ट्रेजरी बिल किसका है? गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट बॉन्ड है, गवर्नमेंट ट्रेजरी, गवर्नमेंट इशूज इट। दैट्स ऑल। कल 12 बजे रहोगे ना? हाँ सर। हाँ, अभी कब तक छुट्टी है? सर अगले संडे तक। 1 वीक है अभी ना? हाँ। ठीक है।